Music is the voice of emotion. And today we have with us the legendary playback singer Anuradha Podwal, also a Padma Shri awardee. With a career spanning decades, she has lent her soulful voice to countless Bollywood hits and devotional albums, touching hearts across generations. Her melodious renditions have earned her multiple national awards and widespread acclaim for versatility and emotive expression. From chart-topping film songs to timeless bhajans, her music continues to inspire and connect people across India and the world. की गड़गड़ाहट से आपको समझ में आएगी होगा कि कितना लोग खुश हो गए थे जैसे कि गाने चले आपके, और हर युवा से लेकर हर एज ग्रुप के जो लोग हैं वो आपके जैसे ही गाने सुनते हैं वो गाने गुनगुनाने लगते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से मैम। और एक जैसे आपका जैसे हमने देखा है कि डिवोशनल म्यूज़िक हो चाहे बॉलीवुड म्यूज़िक हो, रोमांटिक सॉन्ग्स हो, स्पिरिचुअल गाने हो, सब में आप हर जॉनरा में आपने एक अपनी अलग छाप छोड़ी है। लेकिन अगर मैं कहूँ शुरुआत में बचपन से कहाँ से आपको संगीत के प्रति झुकाव आया और प्रोत्साहन कहाँ से मिला? बचपन से मुझे गाने का बहुत शौक़ था, बट बेसिकली आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे मेरे पिताजी को ये गवारा नहीं था कि अच्छे घर की लड़कियां नहीं गाती हैं। सो ही वॉज नॉट वेरी मच फॉर मी बिकमिंग अ प्लेबैक सिंगर। तो जैसे हर मिडिल क्लास में स्पेशली मराठीज़ और बंगालीज़ बच्चों को म्यूज़िक सिखाते हैं, तो उस तरह से मैंने सीखा थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। लेकिन इट इज़ ओनली आफ्टर आई गॉट मैरिड टू अरुण पौडवाल जी। He was the assistant music director to S.D. Burman ji, and he happened to hear my song घर के tape recorder पे, and then he called me to sing for a shlok in Abhiman. And then by then a lot of music directors had called me because they had heard me on the radio कि हम आपको launch करना चाहते हैं, but I told them कि no, I'm not interested in films. So they said, whenever you start, then we would like to launch you. That's how one shlok led to so many other songs. आपकी मतलब शुरुआत श्लोक से हुई, अभिमान जिसमें अमिताभ बच्चन जैसे बड़े कलाकार थे उस समय और अपने पीक पर थे, 70 के दशक की बात है ये। तो शुरुआत ही आपकी आध्यात्मिक हुई है श्लोक से। बिल्कुल। बट इट्स सच अ कोइंसिडेंस कि जब भी किसी बड़े फिल्म में मेरा गाना होता था रिकॉर्डिंग, तो पहले श्लोक होता था एंड देन कोई गाना। जैसे व्हेन आई सैंग इन द फिल्म हीरो, तो हीरो का जो तू मेरा जानू है, दैट वाज अनदर स्टोरी। तो उसके लिए भी मैंने पहले गायत्री मंत्र गाया था सुभाष घाई की फिल्म के एम्बलम के लिए। तो इट हैज़ ऑलवेज गॉन हैंड इन हैंड, डिवोशनल एंड it has aligned you with absolutely yes. So having started with this shlok and then you went on to become such a hit in the 90s, almost every at least we can talk about the romantic song from Sajan to several others. Dil Hai Ki Manta Nahi, we just played them out, and it's such a such sensational hits. Before we just delve further in your journey, थोड़ी से कुछ दो लाइनें अगर आप गुनगुना सके तो। Okay, let me just sing the Gayatri Mantra. जी। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू सो मच मैम। और बिल्कुल There are going to be lots of them. Arnav ji has to call me for another program separately. Yeah? अभी शुभ शुरुआत की है, लेकिन I promise you and I can predict that ऐसी बहुत requests आने वाली है। लेकिन अगर आप हीरो की not a song, I won't sing the song, लेकिन एक
उस गाने से एसोसिएटेड एक बहुत ही प्यारा सा किस्सा है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ. दैट सॉन्ग वॉज मेंट टू बी फॉर लता जी. In fact, even the श्लोक that I sang in Abhiman was meant to be for लता जी. और उन्होंने कहा कि that song was going to be recorded because उसकी शूटिंग होनी थी और दीदी was not in town. तो I said I will sing for the dubbing as a dubbing artist. और वो जब गाना रिकॉर्ड हुआ it was a one take okay. Yes, because they were Lakshmi ji and Pyare Bhai, they were concentrating more upon the music track. And then फिर शाम को जब उन्होंने सुना तो then you know they decided कि when we are taking a new voice for Jackie Shroff, so why not a new voice for Meenakshi ji? That's how that got retained. And then the second one, Ding Dong, that followed. So that's how it was retained. And you know, the fact that you started with the shlok and the devotional genre That is came much later. Yeah. So I'm saying when you went on to the 90s, you know, एक कहीं ना कहीं perception बन जाता है किसी का कि ये करें कि एक genre में limit नहीं किया कभी आपने अपने आप को. जो भी गाना आपको आई थिंक जो अपॉर्चुनिटी मिली, यू मेड द बेस्ट आउट ऑफ इट एंड यू वर शाइनिंग. See, I was in the films for a good 12 years, okay, and after Hero, there were not many musicals that were being made because they were all सारी बड़े हीरोज़ को लेके हीरो ओरिएंटेड अमर अकबर एंथनी वगैरह उस तरह की फिल्म्स बन रही थी, तो जिसमें गानों के लिए फीमेल गानों के लिए इतना स्कोप नहीं था. सो दैट इज़ अ टाइम दैट आई थॉट कि व्हाई नॉट शिफ्ट टू मे बी डिवोशनल्स और समथिंग लाइक दैट. सो आई अप्रोच सर्टेन कंपनीज. उस वक्त टी सीरीज़ नहीं थी, इट्स बिफोर दैट HMV था, यूनिवर्सल था. सो दे सेड वी हैव डन अ मार्केट रिसर्च और आपका डिवोशनल के लिए बिल्कुल ही मार्केट नहीं है. सो आई कंटिन्यूड एंड देन बट आई हैड ऑलवेज मेड अप माई माइंड दैट अगर ईश्वर ने मुझे कभी उस पोजीशन पे माँ लेके जाती है तो देन आई विल उनके चरणों में अर्पण करके आई विल टर्न टू डिवोशनल्स. दैट इज़ व्हेन लाल दुपट्टा हैपेंड. बट अगेन उसके पहले मैंने दुर्गा सप्तशती गाई थी उनके लिए. यस, सो इट वेंट हैंड इन हैंड. और जब आशिकी, दिले के मानतानी, सड़क, साथी, ये सारी फिल्म्स हुई, उसके बाद देन आई डिसाइडेड टू गिव इट अप एंड देन आई टुक टू डिवोशनल्स. बट गॉड हैज़ बीन रियली काइंड बिकॉज सिर्फ हमने इंसानों ने डिसाइड करके कुछ नहीं होता है. बिल्कुल. दैट होल क्या मैं कहूँ कि पूरी दुनिया खोल दी ईश्वर ने. बिकॉज देयर वॉज अ कंपनी जिनका नॉर्थ में वैष्णो देवी और गंगा जी वगैरह सभी जगह पे उन्हीं टी सीरीज़ वॉज रूलिंग और उन्हीं के पास VCDs भी हुआ करती थी. तो दे स्टार्टेड शूटिंग एंड पुटिंग इट ऑन VCDs. दैट इज़ हाउ एक घर घर पहुँचे सारे मंदिर. आपने और आज तक आपकी आवाज़ गूंजती है हर घर में, अगर हम बात करें चाहे वो डिवोशनल म्यूज़िक हो और चाहे रोमांटिक म्यूज़िक हो. इसलिए अक्रॉस एज ग्रुप्स आप कनेक्ट कर पाती हैं आज तक. इसलिए मैं अभी जैसे ही गाने चले हैं तो बहुत लोग वेट कर रहे हैं कि अगर आप 2 लाइन गुनगुना सकें. मैं गाऊंगी लेकिन बाद में. बिल्कुल बिल्कुल. आई एम जस्ट सेटिंग द टोन फॉर दिस कन्वर्सेशन जिससे कि एब्सोल्युटली. जी. सो आपकी जो जर्नी डेफिनेटली सिंग बट आफ्टरवर्ड्स. जी. तो जैसे कि हमने आप बात करी कि शुरुआत में आपको बड़ी मूवी जैसे कि अभिमान में मौका मिला था शुरुआत से ही, और आपने बोला कि कृपा इतनी रही है कि आगे आप बढ़ती गई. एक वो मोमेंट अगर आप बता सके, टर्निंग पॉइंट जिसे आप कह सकें आपके करियर में, जो आपको लगा कि यहाँ से मतलब जो आपने शायद सोचा भी ना हो और वो मोमेंट आ गया हो, वो अपॉर्चुनिटी आ गई हो, कुछ भी ऐसा मंजर आपके करियर में. That is when आशिकी, दिले के मानतानी and all that happened. और फिर मैंने बोला हुआ था दक्षिणेश्वर मंदिर में. Because 12 years after being in the industry,
And then I had been there, so the pujari asked me to sing something माँ की स्तुति. So उस वक्त मुझे एक भी भजन नहीं आता था. तो दैट इज़ व्हेन आई वहाँ पे मैंने बोला था कि अगर मुझे, इट्स नॉट दैट आई एम वेरी मच फॉर द फिल्म इंडस्ट्री, मतलब ऐसा नहीं कि मेरी जान उसमें अटकी है, बट आई वुड नॉट लाइक टू एग्जिट फ्रॉम देयर कि गाने थोड़े कम हैं, नॉट पॉपुलर, ऐसे नहीं. इफ़ यू टेक मी टू दैट हाइट, देन अपने आप से मैं छोड़ दूँ. दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ. यस. एंड वो पॉइंट के बाद आज मोर देन 9,000 सॉन्ग्स, अगर आप बात करें, इनका रिकॉर्ड लिटरली सिंगिंग का है 9,000 प्लस सॉन्ग्स अक्रॉस फिल्म एंड नॉन फिल्म कैटेगरीज. और अगर डिवोशनल की बात करें, भजन्स की बात करें, तो 1,500 से ज़्यादा का एक रिकॉर्ड है. और लीडिंग प्लेबैक वॉइस आप रही ही हैं. अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा मज़ा आपको कौन सा गाना रिकॉर्ड करने में, अगर हम प्लेबैक की बात करें? गंगा जी की आरती. जी. और अगर बॉलीवुड की बात बीइंग प्लेड देयर फॉर द लास्ट 35 जी. इयर्स, सुबह शाम. हाँ बिल्कुल. और गंगा जी की आरती, आई डोंट नो वेदर यू बीन टू हरिद्वार, जी जी. लेकिन हर की पौड़ी पे हाँ. वो सुबह शाम चलती है. एंड देयर इज लाइक 2.5 लाख लोग एवरी डे होते हैं. सो आई थिंक दिस इज़ अ रेयर ब्लेसिंग. एंड अनदर मोमेंट वाज जिस वक्त भगवान राम की प्रतिष्ठा हुई, उस वक्त वहाँ पे राम भुजंग प्रयात मैंने गाया. तो दीज आर मोमेंट्स, यू नो, बिकॉज फिल्म्स में वगैरह ऑफ कोर्स यू लाइक इट, दे नाइस एंड पॉपुलर वगैरह होते हैं, लेकिन कोई ये आके नहीं कहता कि हमारी सुबह आपके आशिकी से होती है. बिल्कुल. लेकिन एंड स्पेशली कोविड में जी. बहुत सारे लोग, जितने लोगों से मेरी बात होती थी, तो यही कहते थे कि स्वामी का तारक मंत्र आपका, वी कीप ऑन लिसनिंग टू इट. बिकॉज ऐसा है कि ईश्वर की कृपा हमेशा बरसती है, लेकिन कुछ मोमेंट्स हमारे जीवन में होते हैं व्हेन वी आर रेडी टू एक्सेप्ट द ब्लेसिंग्स. ऐसा नहीं है कि भगवान उसी वक्त कृपा बरसाता, ऐसा नहीं है. वी शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट इट. तो दैट वाज अ टाइम कि डिवोशनल से एक अंदरूनी मुझे सेटिस्फैक्शन मिली, खुशी मिली. और अगर हम जो रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, उसमें से आपका पर्सनल सबसे पसंदीदा? डिफ़िकल्ट है. तू मेरा जानू, आई टोल्ड यू, बिकॉज आई नेवर एक्सपेक्टेड जी. कि दैट वुड बी रिटेन्ड. जी. और अगर आप कोई आपके सबसे पसंदीदा जो रहे हैं सिंगर जिनके साथ आपने काम किया है, अगर उसके बारे में अगर आप बता सकें तो? बहुत सारे रहे हैं जी. I have done almost 250 shows with किशोरदा all over the world. फिर रफ़ी साहब के साथ मेरे almost 30 songs duets हैं. आशा जी के साथ गाया है. I have had the privilege of singing with all the yesteryears के जितने भी दिग्गज कलाकार थे, जैसे तलत महमूद जी थे, मन्नर डे थे, हेमंत कुमार जी थे. तो it's a huge blessing. आपको लगता है कि ये for connecting with the youth is important to evolve with time? Of course, nowadays you see everybody is bhajan jamming. भजन क्लबिंग या Bhajan clubbing, bhajan jamming. जी. तो see, they have to come back to the basics. वो तो आना ही है उनको, you know. तो it's a nice thing that this in these times the youth has taken up to good music. आजकल सोशल मीडिया पे भी इतने अच्छे कलाकार, पता नहीं कहाँ के छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग इतना अच्छा गाते हैं, वो ब्यूटीफुल. तो अच्छा लगता है कि जब व्हेन यू नो दैट अगेन वो सर्कल पूरा हो रहा है एंड पीपल हैव स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग गुड म्यूज़िक. जैसे आपने बोला आजकल के सिंगर्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात रहती है कि पहले के सिंगर्स और आज के सिंगर्स को लेकर काफ़ी कंपैरिजन्स होते हैं. आपको लगता है कि क्या बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, या फिर अभी चूँकि सोशल मीडिया है तो बहुत एक्सेसिबिलिटी है टैलेंट को डिस्प्ले करने का, इसलिए एक पूल ज़्यादा बढ़ गया कहीं ना कहीं? शायद रिस्ट्रिक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ थी पहले. नहीं, आजकल तो ओवरनाइट सक्सेस है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया. फिर रियलिटी शोज़ है ना. बट आई विल नॉट कंपेयर द सिंगर्स ऑफ येस्टर ईयर्स विद टुडेज सिंगर्स.
इट इज़ नॉट राइट बिकॉज दे आर सपोज टू सिंग वॉट दे आर गिवन. तो उन गानों की सस्टेनेबिलिटी कितनी होती है उसके ऊपर सिंगर की लाइफ डिपेंड करती है. और यू फील दैट जो ट्रेनिंग है सिंगर्स की हैज़ क्या आपको लगता है कि उसमें क्या रीच बढ़ी है? बहुत बढ़िया गाते हैं छोटे छोटे बच्चे तो मतलब पिछले जन्म का सीख करके आके गाते हैं ऐसे लगता है. दे सिंग सो वेल यू नो. तो इट्स नॉट राइट टू कंपेयर एक्चुअली. जैसे जैसे गानों का फॉर्म बदलते जाता है दे हैव टू डिलीवर देयर गुड्स. तो आपने जिस तरह से थ्रू आउट द डेकेड्स काम किया है फिल्मों के लिए भी और अगर हम बात करें एल्बम्स के लिए भी, तो आपको लगा है कभी कि कोई एक पर्टिकुलर टाइप के सॉन्ग या जॉनरा जो आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए था या मैं नहीं कर पाई हूँ, या कुछ भी ऐसा लगा है आपको कि यू वांटेड टू डू? कभी नहीं लगा? आई हैव ऑलवेज बीन अ सैटिस्फाइड सोल. जी. एंड गॉड हैज़ बीन सुपर काइंड टू मी बिकॉज मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई विल कम इनटू द इंडस्ट्री. यस. बट देयर आई वाज एंड बहुत सुंदर गाने मुझे मिले. जी बिल्कुल. एंड इट्स नॉट एवरी डे दैट सिंगर गेट्स टू सिंग 10-11 songs in a film, all super hits. Yes. That was that particular time of the 90s. Yes. You know, so God has been really kind. Yes. I think 90s kids will understand this, that that was for at least the 90s kids, that was a golden era that आज तक वो गाने याद रहते हैं और अभी भी जब वो चलते हैं तो बहुत नॉस्टैल्जिया होता है. जी. तो बट वो आप अगर बताएं कि तब क्या ऐसी चीज़ थी कि वो जो नॉस्टैल्जिया है वो आज तक मतलब बरकरार है, वो जो उसमें ऐसा क्या सब्सटेंस था उस दौरान जो म्यूज़िक था, ये उसमें ऐसी क्या बात थी आपके हिसाब से? सी उन दिनों में क्या हुआ था कि आई टोल्ड यू ना कि मतलब 10-12 साल मतलब टूवर्ड्स आफ्टर हीरो सारे गाने जो फिल्मों में आने लगे दे वर ऑल हीरो ओरिएंटेड सॉन्ग्स. एंड उस वक्त आई हैड जॉइन हैंड्स विद टी सीरीज़ एंड उनका मेन फोकस ये था कि हमारी कैसेट्स बिकनी चाहिए. So what they used to do is जो पुराने गाने में जो मीठे मीठे गाने होते थे ना, तो वो सबको वो कंपाइल करके एक कैसेट में they used to put them compile in one cassette and then they used to sell them. So what we did is with लाल दुपट्टा मलमल का and the following जो गाने थे, तो उसमें हमने कहा कि why not base select record songs से about 10-11-12 गाने based on the lilting melodies and make वैसे गाने. That is how क्या करते थे साजना was composed. And then people instantly they took because they were hungry for thirsty for good music. तो जैसे ही ये गाने आने शुरू हो गए तो immediately they lapped it up. उसके बाद मीरा का मोहन था और आशिकी दिल के मानता नहीं. And these first 2-3 films जो थे लाल दुपट्टा वगैरह they were not meant to be films. They were only picturized because सर्टिफिकेट मिलना चाहिए to run them on the television. इस वजह से they were made into film. They were not basically films. But 2-3 होने के बाद जब मैंने नदीम श्रवण के साथ we recorded almost 27 songs just like that, not for any film. उसके बाद महेश जी को जब सुनाए गाने, then he said I will make a film on this. That is how आशिकी, दिल है के मानता नहीं, सड़क एंड साथी वर मेड. जी. तो वो आई थिंक एवरीबडी वांटेड टू प्रूव समथिंग. सिंगर्स, राइटर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, एक हंगर था. हाँ, एक था ना कि कुछ हम करके दिखा, प्रूव करना है, हंगर है. गिव देम आवर बेस्ट. तो किसी के भी वो कमर्शियल एंगल नहीं था. तो आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग, मतलब बहुत बड़ा पॉइंट है वो, क्योंकि उसमें किसी को खुश करना है तो एक्टर को खुश करना है, डायरेक्टर को खुश करना है, ये करना है, ऐसा कुछ नहीं था. जस्ट फॉर द सेक ऑफ म्यूजिक. यस, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इतने खूबसूरत गाने थे जो अभी तक दिल को छूते हैं. जी बिल्कुल. जी. और जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी को
कहीं ना कहीं एक तरह से ख़िलाफ़ थे कि आप नहीं परस्यू करें सिंगिंग, आपको लगता है कि वो विद टाइम बहुत ज़्यादा बदल गई हैं चीज़ें, अगर हम फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की बात करें बतौर एक्टर, सिंगर और जनरली एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो, सॉन्ग एंड डांस? तो हर फैमिली में 4 लोग तो सोशल मीडिया में जी, हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, कैमरामैन जी, हैं, you know, जी. so everything has changed now. And you feel that there should, but with popular culture or at pop culture, you feel that there should be, that talent, real talent should not get lost. आपको लगता है कहीं ना हाँ, कहीं? पर आज आई डोंट थिंक एनीबडी कैन कंप्लेन कि हमें प्लेटफॉर्म नहीं है. देयर आर टू मेनी प्लेटफॉर्म्स नाउ. प्लेटफॉर्म के लिए डायरेक्शन है क्या, एक दिशा है? बहुत ज़्यादा. एनीबडी कैन रिकॉर्ड फ्रॉम एनीवेयर एंड पुट इट ऑन द सोशल मीडिया. इट क्लिक्स एंड इट जस्ट क्लिक्स. नहीं, बट अगर ओवरनाइट सक्सेस क्या ना? मापदंड हो सकता है? नहीं, यू सी ऑन द रियलिटी शोज जी जी वन विनर और जी ओवरनाइट सक्सेस होता है. इंस्टेंटली दे स्टार्ट गेटिंग प्रोग्राम्स जी. and they're basically, I don't know now, but when I met a couple of them, they said कि we are not interested in हम ये नहीं चाहते कि हमारे गाने रिकॉर्ड हो. I was shocked, you know. They said कि नहीं, we are very happy कि हमको प्रोग्राम्स मिल जाते हैं. ओके. जबकि they have to realize कि जब भी when your songs are recorded, they are being played again and that's how you get success. जी प्रोग्राम्स में होता है कि कहीं प्रोग्राम हुआ तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जी यू नो. बट टू गेन पॉपुलैरिटी इट्स वेरी नेसेसरी दैट योर सॉन्ग्स हैव टू बी रिकॉर्डेड एंड प्लेड. रिकॉल वैल्यू एक रहती है. और ऑफ कोर्स. जी. एंड अगर आपकी बात करें तो आप सबसे ज़्यादा एंजॉय क्या करती हैं, प्लेबैक सिंगिंग या लाइव परफॉर्मेंसेस? एंड See, I already told you that I've been very lucky to get the best of songs. और of course लाइव ऑडियंसेस के सामने जब मैं गाती हूँ तो उनके साथ एक रैपो जो मिलता है उसकी खुशी एक अलग ही होती है. So you can't compare the two. Deserves a round of applause, and it's an inspiration for all of us. She's not just a successful and an iconic singer, but also contributing her own way to the society. And with that, we come to a close of this conversation, ma'am. And a big round of applause once again, please, ladies and gentlemen. मैं लेके आई थी ट्रैक सो दैट थोड़ा सा पेप मिलता है ना. यहाँ पे अकेले गा के क्या फ़ायदा होता बताइए. तो गाया ही नहीं आप लोगों ने. चलिए गाइए मेरे साथ. तू प्रेमी मैं प्रेमी, तू राजी मैं राजी, फिर क्या डैडी क्या अम्मा, एक बस तू ही प्यार के काबिल, सारा जहां है निकम्मा. तमा तमा लोगे तमा तमा लोगे तमा 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 लोगे तमा तमा लोगे तमा. Thank you so much.